Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 15 November 2021 and I am teaching you chapter number 16 and name of the chapter The Great Indian Desert. So, student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video student we discussed that the area which does not receive a rainfall or there is very little rainfall or no rainfall at all, that area is known as a desert area. Okay, a desert in an area that receive either very little rain or no rainfall, that area is known as the desert area. And after that student we discussed that when we are talking about the desert, so the Great Indian Desert is also known as the Thar Desert. Is it clear? The Great Indian Desert is also known as the Thar Desert. Okay, so and it touches Gujarat, some parts of a Punjab, Haryana, and maximum part of this Thar Desert is in Rajasthan. Okay, maximum part of the Thar Desert is in Rajasthan, and after that even I have explained you that if we are talking about the Thar Desert, then 85% of the Thar Desert is in our country, that is in India, and 15% part is in our neighboring country, that is known as Pakistan. And I hope you have seen the picture Bajrangi Bhaijaan. In that you have seen that Salman Khan, he crossed the Indian border and go to Pakistan by the desert area. So in that picture it is shown about the Thar Desert. Okay, so student, after that I explained you about the desert area. See, when we are talking about the plains, for example these are the plains. Okay, in this manner the land is plain, in plain regions, but as we know that desert, it means the soil break down or crumbles and the soil changes in the form of a sand. So you will see this type. Okay, so in the desert. Okay, and another thing which I explained you, you will see sand dunes, and these are formed due to the blow of the air. Okay, so these, so you will see the sand in these forms, and when the air blow, due to this you will see sand dunes in the desert area. After that we discuss people in the olden days use a camel as a transport. Okay, so when we are talking about the older time student, then in the desert area the living condition is a very tough. Okay, because there is a scarcity of a water, मतलब पानी की बहुत कमी है. और बेटा हम लोग जैसे जानते हैं कि विदाउट वाटर लाइफ पॉसिबल है, नो. in our day to day life we use lot of water in different types of activities. Okay, and we also need clean drinking water and clean water for cooking purpose also. Okay, so due to scarcity of a water, life in the desert area, when we are talking about the old time, मैं old इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट थोड़ा आगे के पैराग्राफ डिस्कस करेंगे तब मैं आपसे बताऊंगा वहां वेयर दैट प्लेस आई विल डिस्कस विद यू. नाउ द लाइफ इन डेजर्ट एरिया, देर इज लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द डेजर्ट एरिया. दैट इज द रीजन जब मैंने ओल्ड टाइम की बात की. ठीक है, सो
there is a scarcity of a water. Another important thing is as we know that we have studied in our earlier classes, like in class 1 2 3 also, that dash is known as the ship of the desert. Ship word we use in a water transport, because the maximum things are import and export to the other countries. A large quantity of a good is import and export with the help of a cargo ships. ठीक है. So ship word we use for the camel. Okay, because the camel has a padded feet, broad padded feet, and it can walk without sinking into the sand. Without sinking into the sand, when you move as a kid, whenever you play in the sand or you take a jump in the sand, आपके पैर पूरे अंदर सैंड में चले जाते होंगे, धंस जाते हैं, पैर अंदर चले जाते हैं. अगर आप जंप कर रहे हो तो वहां जैसे लगता है गड्ढा हो गया है. ठीक है, तो हमारे पैर जो है, तो दैट इज द रीजन. लेकिन जो कैमिल है, विदाउट सिंकिंग, उसके पैर सैंड में नहीं धंसते, वो बहुत इजीली सैंड के ऊपर वॉक कर लेता है. तो स्पेशली ओल्ड टाइम में जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट था बेटा, वो स्पेशली आपका क्या था, कैमिल ही था. इज इट क्लियर? बिकॉज इन अ डेजर्ट एरिया इट इज अ वास्ट एरिया. मतलब डेजर्ट इज ए वास्ट, मतलब बहुत फैला हुआ है. ठीक है, तो वहां उतने मैक्सिमम रोड्स नहीं थे, सैंड ही सैंड था. आज प्रेजेंट टाइम में जाओगे तो आपको बहुत जगह रोड मिलेगी, लेकिन ऐसा ओल्ड टाइम में उतने फैसिलिटीज नहीं थी. ठीक है, तो ओल्ड टाइम को कंसीडर करें तो पीपल्स आर टोटली डिपेंड अपॉन कैमिल फॉर द ट्रांसपोर्ट. दैट इज द रीजन कैमिल को हमने क्या बोला, शिप ऑफ द डेजर्ट, बिकॉज कैमिल वॉक वेरी इजिली ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग. ठीक है, अब देखो कैमिल कैन गो. अनदर इंपॉर्टेंट advantage, other advantage of this animal, that is camel, is that it can survive in this desert area without food and water for many days. आप लोग जब गर्मियां आती हैं तो कितनी ज्यादा थर्स्टी फील करते हो, बहुत ज्यादा आपको प्यास लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी से जब टेम्परेचर वेदर हॉट होता है तो वी लॉस लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ए स्वेट, तो बहुत सा पसीना होता है. इससे बॉडी का टेम्परेचर क्या मेंटेन रहता है. दैट इज द रीजन. ठीक है, अब जो एरिया ही डेजर्ट है, जहां बहुत हॉट वेदर है, ठीक है, जहां का क्लाइमेट हॉट है, ठीक है, तो ऐसे एरिया में ये बहुत ही मिरेकल वाली बात हुई बहुत, कि ऐसा एनिमल वहां है जो बिना वाटर के भी बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है. तो दैट इज द रीजन हमने कैमिल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला है. ठीक है, नाउ जीप्स आर यूज इन सिटीज. अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में in many areas we having the road facilities, and jeeps or other means of transport are so used to transport the things from one place to another. ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर. जैसे मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया आपसे, स्कैरसिटी मतलब होता है वाटर की बहुत कमी. ठीक है, तो दैट इज द रीजन वेजिटेशन, मतलब जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, यहां आपको लेस देखने के लिए मिलेंगे. जैसे हिमाद्री जब हमने पढ़ा था, द फर्स्ट फिजिकल डिवीजन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी माउंटेन रेंज, तो हिमाद्री रेंज में वेजिटेशन बहुत लेस थी, बिकॉज वो माउंटेन्स क्या है, बहुत हाइट वाले हैं. द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन इज 6000 मीटर एंड दे आर टोटली कवर्ड विद अ स्नो. तो दैट इज द रीजन, उस रीजन में, हिमाद्री रीजन में वेजिटेशन क्या है, लेस थी. और जैसे जैसे आप नीचे आते गए, मिडल्स हिमालयस में, हिमाचल में और शिवालिक में, तो यहाँ आपको थिक फॉरेस्ट देखने के लिए मिले. फॉरेस्ट कभी भी आप माउंटेन्स को देखोगे, माउंटेन्स आर टोटली कवर्ड विद लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है. लेकिन हिमाद्री रेंज में थ्रू आउट द ईयर the mountains are covered with the snow. In the same manner, in desert area there is a scarcity of water is very less, so
only few plants can survive in this desert, and some of the plants are cactus, some of the plants are cactus, some name of the plant cactus, kicker and बबूल. ठीक है. Why? Because these are the plants which require little water. That is the reason they grow in the desert area. ठीक है. That is the reason they grow in the desert area. और मोस्टली आप देखोगे डेजर्ट प्लांट थ्रोनी होते हैं, उनमें बहुत से कांटे होते हैं. ठीक है. और अनदर थिंग, जैसा मैंने क्लास 4 पे भी पढ़ाया था नेचर गिफ्ट वाले में, तो उसमें भी मैंने बताया था आप लोग को कि जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स क्या होती है, बहुत स्मॉल इन साइज होती है. बिकॉज वी नो दैट फॉर एग्जाम्पल our body also lose water in the form of a sweat. In the same manner the plants also lose water and this process is known as transpiration. तो ऑलरेडी यहाँ वाटर की बहुत स्कैरेसिटी है, बहुत कम वाटर है. अगर पेड़ों की लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, तो प्लांट्स कैसे सरवाइव करेगा. तो इसीलिए यहाँ पेड़ों में कांटे बहुत ज्यादा हैं. ठीक है. और जो लीव्स हैं भी तो वो स्मॉल साइज के हैं, जिससे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या लेस हो. इज इट क्लियर. एंड अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लांट इज दैट देयर रूट्स आर वेरी लॉन्ग. ओके. सो दैट दे कैन ट्रैप द अंडरग्राउंड वाटर. जो डेजर्ट में प्लांट जो सर्वाइव कर जाते हैं इनके रूट्स काफी लॉन्ग होते हैं, क्योंकि जी अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर सके, ट्रैप कर सके. क्योंकि यहाँ रेनफॉल बहुत लेस होती है, टोटली नो होती है. इज इट क्लियर. सो दिस इज द रीजन. नेक्स्ट पेज. नाउ कम टू पेज नंबर 96. ओएसिस की बात यहाँ की गई है. पेज नंबर 96. oasis. Okay student. So what is oasis? Oasis the fertile area. fertile मतलब जहां बहुत से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में, तभी तो प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी. इज इट क्लियर. सो fertile area in the desert where underground water comes to the surface. So there are some places in the desert area में भी कुछ ऐसी places हैं बेटा जहां अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है, एंड दैट प्लेसेस आर नोन एज व्हाट, ओएसिस. ठीक है. सो डेट palms grow here and most villages in the desert are clustered around the oasis. अब जो आप डेजर्ट एरिया में देखोगे मैक्सिमम विलेजेस, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको ओएसिस एरिया में ही देखने को मिलेगी. क्योंकि अगर ओल्ड टाइम में बेटा बात करो, ओल्ड टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हेन यू गो इन क्लास 6 एंड यू विल स्टडी द हिस्ट्री, देन द मैक्सिमम पीपल इन द ओल्ड टाइम दे सेटल एट द रिवर बैंक्स. क्योंकि बहुत ज्यादा हमें पता है, हमें डे टू डे लाइफ में वाटर की जरूरत होती है, तो मैक्सिमम पीपल जो सेटल होते थे वो कहाँ रहते थे, रिवर बैंक्स में, रिवर्स के किनारे रहते थे. प्रेजेंट टाइम में अब कंडीशन डिफर है. प्रेजेंट टाइम में रिवर बैंक्स के बगल में अब लोग नहीं रहना चाहते ज्यादा. क्यों? एवरी ईयर फ्लड्स विल कम एंड देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो एंड लॉस ऑफ लाइफ आल्सो.
ठीक है, क्योंकि बहुत ओल्ड टाइम में लोगों को पता ही नहीं था अंडरग्राउंड वाटर भी निकालते हैं वेल से। इज इट क्लियर? और आप प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सी टेक्निक अंडरग्राउंड की वेल से भी मिलता है। आज आप विलेजेस में चला जाओगे, इन एवरी विलेजेस यू विल सी द हैंड पंप्स। सो इन दिस वाटर वी, इन दिस वे वी आर यूटिलाइजिंग द अंडरग्राउंड वाटर एंड फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, नाउ डेट पाम आपने सुना होगा, खजूर खाई भी होगी तो उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों ने नहीं खाई होगी तो अपने मम्मी पापा से बोलना कि खिला दे। ठीक है, और सर से बोलोगे तो हम तो कल ही आप सबको खजूर खिला देंगे ऑनलाइन पीरियड में। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा और खजूर के बहुत से बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाऊंगा, प्लांट्स, जिसको जितने तोड़ने होंगे तोड़ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने वहां ओल्ड टाइम एक वर्ड यूज किया था। अब इन प्रेजेंट टाइम द कंडीशन ऑफ द people who are living in this Thar desert, there is a lot of change come in the life of the people who are living in the Thar desert. And how this is possible? This is possible due to the government, because government has built the dam. ठीक है, गवर्नमेंट ने डैम बनाया। नेम ऑफ द डैम इज भाखड़ा नंगल डैम है, and it is built on which river? That is river Satluj river. So and this dam is at the border of Punjab. अब ये सतलुज रिवर पे जो भाखड़ा नंगल डैम बना, सो वहां से कैनल, आप लोग अगर अपने विलेजेस में जाते होगे इन समर वेकेशन, जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हर विलेज में नहर होती है। इंग्लिश में कैनल बोलते हैं, हिंदी में नहर बोलते हैं, नहर का पानी बोलते हैं ना। एंड दिस वाटर इज यूटिलाइज बाय द फार्मर एट द टाइम ऑफ द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स खेती करना, क्रॉप्स को लगाना, अनाज, सीरियल्स जो हम लोग बोलते हैं, जिनको हम लोग खाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हैं? ये सब के सब सीड्स हैं। हम ह्यूमन बींग्स बहुत चालाक हैं। वी आर ईटिंग द सीड्स ऑफ द प्लांट्स आल्सो, क्योंकि ये जितने भी अनाज हैं, सीरियल्स जो आप बोलते हो, ये सब क्या है? सीड्स हैं, विच वी कैन ईट। दैट इज द रीजन दिस इज नोन एज ईटेबल सीड्स। आई होप आई हैव टेल यू अबाउट द ईटेबल सीड इन क्लास 3, इन क्लास 3 EVS. ओके, सो दिस कैनल गेट्स इज वाटर। अब जो आप विलेजेस में कैनल्स देखते हो, नहरें देखते हो, वो सब डैम्स का वाटर होता है। एंड विलेजर यूज दिस वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, स्पेशली फॉर द कल्टिवेशन। नाउ व्हाट्स हैपन? द कैनल्स कम्स फ्रॉम द and through this canal, and this canal is attached to the Bhakra Nangal dam and it is built on the river Satluj. ओके, और इसमें वाटर किसका है? सतलुज का, उसकी ट्रिब्यूटरीज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज? आई होप इज इट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो सहायक नदियां होती हैं, जैसे रिवर गंगा इज अ बिग रिवर, सो ऑन द वे जब वो माउंटेन से प्लेन्स में आती है तो बहुत सी स्मॉल रिवर्स जो है उनका वाटर उसमें मिक्सअप हो जाता है, तो डैट आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज, जो कि मैंने आप लोग को डेक्कन प्लेट्यूज में भी बताया था, नॉर्दर्न प्लेट्यूज में भी बताया था। ठीक है, आई होप ट्रिब्यूटरीज इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So due to this canal, the problem of water of the people who are living in Thar desert, okay, so this is solved. अब वहाँ वाटर की उतनी स्कैरेसिटी या उतनी शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं है, बिकॉज थ्रू दिस कैनल दे आर गेटिंग द वाटर. अब आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में आप डेजर्ट एरिया में आप होप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप राजस्थान अभी चल जाओ तो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी कल्टीवेशन हो रही है राजस्थान में, क्योंकि ओल्ड टाइम में
टोटली स्कैरिसिटी ऑफ वाटर था, कहीं से वाटर की कोई सप्लाई नहीं थी. देन एट दैट टाइम द लाइफ इज वेरी टफ इन दिस डेजर्ट एरिया. बट ड्यू टू दिस Satluj river water, lot of change come in the life of the people who are living in the Thar desert. Okay student, we will continue this topic in the next video. Thank you.